Hello friends, welcome to my channel that is Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. This is Takshi Gupta and I am taking your lecture series for growth of economic theory. Okay, the theory of economic growth. So what you have to discuss in the theory of economic growth is just what are the models, what are the techniques, how we can lead to an economic growth. So this is basically you can say that today what we are going to discuss is in this lecture series. Today I am going to discuss with you the Domerian model of growth economics. What is the Domerian model of growth economics? So this is your lecture number 3.1. Why I had considered it as 3.1, as you all are familiar with this, that I am taking your lecture series for the theory of economic growth, in which we had covered 5 lecture series. So this was the model that has been left out of your unit 1. So now I'm making the video over this and I shall discuss this and I shall you can say share this with you in your WhatsApp group. Why so? Because whatever I'm making in these videos, whatever I'm making for the PCP lectures of Directorate of Distance Education, University of Jammu, I'm not making these lectures publicly publishing. I'm not publishing them publicly. I'm not making them available for each and every person. I'm unlisting the lectures. मैंने इन lectures को unlist करके रखा हुआ है. So I'll just share the link with you in your group, in your classroom group, and from there you can access my lectures. Clear? So today we are going to discuss with the Domerian model. So as far as the Domerian model is concerned, what you have to study in this, as I had told you earlier also, मैंने आपको पहले भी बताया था that what is happening, that there's a one similarity between Domer as well as Harridan model. And what is that similarity? That similarity is that both are talking about investment. दोनों ने investment की ही बात की हुई है. ठीक है, एक तो investment की दोनों बात करते हैं, दूसरा दोनों जो मॉडल्स हैं दे बोथ आर नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ द केन्जियन मॉडल. दोनों को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ द केनेजियन मॉडल भी कहते हैं. द सेकंड द another similar point between them is that both the models are come up with the same results. दोनों मॉडल्स का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है. बट the where's the point of difference? So the point of difference is there. What is that is वो ये है कि दोनों मॉडल्स को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है दैट वाज एक्सट्रीमली एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वो दोनों से बिल्कुल क्या है? अलग है. डॉमरियन मॉडल की बात करते हैं तो डॉमरियन मॉडल ने क्या कहा है? व्हाट डॉमर हैज फोकस्ड अपॉन इज दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट. व्हाट ही हैज फोकस्ड अपॉन? ही हैज फोकस्ड अपॉन द ड्यूअल नेचर ऑफ द you can say your investment. What is that mean? इसका क्या मतलब है? ड्यूअल नेचर की जब बात करते हैं प्रोफेसर डॉमर, तो ये क्या कहने का इनका मतलब है? इनका मतलब ये है दैट इन्वेस्टमेंट हैज टू प्ले टू डिफरेंट रोल्स, कि इन्वेस्टमेंट को दो अलग अलग रोल्स जो है वो प्ले करने हैं. अब वो दो रोल्स क्या हैं? सबसे पहला रोल जो है दैट इज द क्रिएशन ऑफ डिमांड. ठीक है, वहां पे एग्रीगेट ऑफ डिमांड था, यहाँ पे क्या आ गया? एग्रीगेट डिमांड थी वहां पे, यहाँ पे आ गया क्रिएशन ऑफ डिमांड. अब डॉमर ने क्या कहा कि इन्वेस्टमेंट क्या करता है? इन्वेस्टमेंट जो है डिमांड को क्रिएट करता है. कौन से पीरियड में? ड्यूरिंग द शॉर्ट रन पीरियड. एक इसका ये काम है. ठीक है, what is the next work that has been done by the investment? That is that it leads to an access capacity. ठीक है, वहां पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी, यहाँ पे क्या आ गई? आपकी एक्सेस कैपेसिटी आ गई. तो डॉमर ने क्या कहा? डॉमर ने कहा कि इन्वेस्टमेंट को जो है वो दो रोल्स प्ले करने हैं, जिसमें पहला रोल जो है व्हाट इज दैट? दैट इज द क्रिएशन ऑफ डिमांड. वो है क्रिएशन ऑफ डिमांड. एंड जो नेक्स्ट रोल है व्हाट इज दैट? दैट इज द एक्सेस कैपेसिटी. वो है एक्सेस कैपेसिटी. जो क्रिएशन ऑफ डिमांड है दैट हैज बीन कंडक्टेड इन योर शॉर्ट रन, वो शॉर्ट रन में प्ले होता है. एंड जो एक्सेस कैपेसिटी है दैट हैज बीन कंडक्टेड इन योर लॉन्ग रन, वो लॉन्ग रन में आता है. ठीक है, दिस इज हाउ डॉमर हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट योर इन्वेस्टमेंट. Now let's move on to the assumptions. What are the assumptions of this model? So first of all जो assumption है वो ये है that the economy assumes to be at full employment equilibrium state. तो economy को क्या assume किया जा रहा है यहाँ पे कि economy जो है that must be operating, वो operate करनी चाहिए full employment equilibrium state. Now what is this full employment equilibrium state? The full employment equilibrium state reveals that the number of laborers available in the economy who voluntarily wants to work, they are getting the work. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वॉलंटरली क्या करना चाहते हैं? काम करना चाहते हैं, उन सबको क्या है? काम मिला हुआ है. अगर कोई वॉलंटरली एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहता है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, तो देन दैट वोंट बी द सिचुएशन ऑफ यू कैन से द फुल एम्प्लॉयमेंट. तो उस सिचुएशन को हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी भी नहीं कह सकते. ठीक है, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट assumption of this model is that the economy has been considered to be closed. हमें ये मान के चलना है कि इकोनॉमी जो है दैट इज एन क्लोज्ड इकोनॉमी. वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी. व्हाट डज इट मीन क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी का ये मतलब है दैट देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, नो
यू कैन से रिलेशन और ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारा बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड जो है, ट्रेड रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो भी कुछ है सिर्फ अपनी इंटीरियर इंटरनल इकोनॉमी में ही चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एन क्लोज्ड इकोनॉमी। Then comes the government does not interfere in the economic activities, कि government यहाँ पे जो सबसे important role है that is the not, not का मतलब है that government intervention जो है वो यहाँ पे allow नहीं करनी। अब as far as the Keynesian model is concerned, क्योंकि हमने कहा ये कीन्स की एक्सटेंशन है, लेकिन जब हम किसी भी मॉडल की फर्दर एक्सटेंशन करते हैं तो कुछ assumptions जो हैं जो इनिशियल मॉडल की होती है वो वेरी कर जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो थर्ड assumption है ये वेरी कर रही है आपकी कीन्स की assumption से। वाई सो? बिकॉज कीन्स का ये मानना था कि जब भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, so the a major role that has been played in that particular economic activity has been played by the government sector, वो सिर्फ government sector ही play कर सकता है because the huge amount, the huge chunk of investment is required, ठीक है। But what Harrod and Dormer are considered about, you can say the role of government in their economic activities, both are considered that there is no intervention of the गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो हमें नहीं चाहिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है दैट मस्ट नॉट बी अंडरटेकन, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब क्या कह रहे हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के बीच में एंड जो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन योर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इन दोनों चीजों में क्या होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? दैट देयर इज नो टाइम गैप, नो टाइम गैप बिटवीन योर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंक्रीज इन योर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। मींस कि हम डिफरेंट पीरियड्स की, डिफरेंट इराज की बात जो है यहाँ पे, डिफरेंट टाइम सेगमेंट्स की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। वी विल टॉकिंग अबाउट द करंट पीरियड। करंट पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उससे करंट की हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें कितना चेंज आया है। हम प्रीवियस पीरियड की या अपकमिंग फ्यूचर पीरियड की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। मींस वी वोंट डिस्कस t-1 एंड t+1 को हम डिस्कस नहीं करेंगे। दैट मींस देयर इज नो लैग। हमने लैग को डॉमर के मॉडल में डिस्कस नहीं करना है। डॉमर के मॉडल में हमने डायरेक्ट जो करंट टाइम पीरियड है उसी की बात करनी है एंड उसी में चेंजेस जो इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रही हैं वी हैव टू एनकाउंटर दैट चेंजेस, हमें उन चेंजेस को देखना है, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, or you can say sorry margin propensities to save जो है that has been considered as constant and also further it is considered as equals to your average propensity to save। अब क्या कहा गया है कि जो आपकी margin propensity to save है that is equals to your average propensity to save, वो average propensity to save के बराबर होगी and ये दोनों की दोनों चीजें जो है they had been considered as constant, और दोनों को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। एक तो दोनों चीजें क्या रहेंगी, एक तो दोनों चीजें हमारी बराबर रहेंगी, दूसरा दोनों चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। सो देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो है उनकी डेप्रिसिएशन जो है दैट वोंट बी अंडरटेकन, वो नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा कि कैपिटल गुड्स की डेप्रिसिएशन को हमें अंडरटेक नहीं किया, क्योंकि हमने टाइम लैग को डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर टाइम लैग को डिस्कस नहीं किया दैट मींस हम बहुत ज्यादा लॉन्गर पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी टाइम पीरियड करंट टाइम पीरियड की बात करें। तो अगर हम करंट टाइम पीरियड की बात करते हैं तो करंट टाइम में आपकी जो डेप्रिसिएशन है कैपिटल गुड की दैट वोंट बी एनकाउंटर, उसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। बिकॉज फॉर डेप्रिसिएशन अ मशीन और अ कैपिटल गुड मस्ट हैव गिवन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको कुछ टाइम दिया जाता है, उसको थोड़ा यूज किया जाता है एंड उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन जो है दैट वुड बी एनकाउंटर्ड इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपने न्यू मशीनरी लगाई है तो उसकी कैपिटल की जो है, अगर कोई न्यू कैपिटल आपने लगाई है अपने बिजनेस में तो उसकी कभी भी डेप्रिसिएशन इनिशियली आप काउंटर नहीं करते, ठीक है। देन कम्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, बट इनकम ऑफ व्हाट, इनकम ऑफ योर सेम पीरियड, ठीक है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, आपकी इनकम के ऊपर। एंड इनकम ऑफ द सेम पीरियड का मतलब है यहाँ पे दैट करंट पीरियड की हम बात करें, दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम इन पीरियड टी दैट मींस YT, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट YT, so what we have to calculate out of that YT is the savings, that is the ST, and the investment that is the IT। तो means हम IT जो है या ST जो है वो हम लैग में नहीं लेके जा रहे हैं, या T-1 पीरियड में नहीं उसको चेक करें, या T-1 में या T+1 में उसको चेक नहीं कर रहे हैं, हम उसी सेम टाइम पीरियड में चेक करें जिस टाइम में हमारे पास इनकम जो है वो है। तो करंट पीरियड की बात हो रही है,
तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देन कम्स योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज वेल एज फिक्स। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात आती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी क्या मान के चला है, क्या अज्यूम किया है डॉमर ने, तो डॉमर ने कहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट वी आल्सो नीड टू केप्ट एज फिक्स्ड, वो भी हमें क्या रखना है, उसको हमें फिक्स्ड रखना है। देन कम्स द प्राइस लेवल, सो जो प्राइस लेवल है दैट आल्सो भी कंसीडर्ड एज फिक्स्ड, इसको भी क्या किया गया है, फिक्स रखा गया है। अब जहां तक हमारे प्राइस लेवल की बात है एंड वी आर सेइंग कि प्राइस लेवल को फिक्स रखा है। प्राइस लेवल को फिक्स रखने का मतलब समझते हैं आप, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब यह है दैट देयर इज नो इन्फ्लेशन। इफ वी आर कीपिंग आवर प्राइस लेवल एज फिक्स्ड एट वन पॉइंट दैट मीन्स देयर इज नो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है। सो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है देन व्हाट विल हैपन, तो हमारी जो मनी इनकम है एज वेल एज जो रियल इनकम है, इसमें कोई भी डिफरेंस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो व्हाट डज इट मीन कि मनी इनकम एंड रियल इनकम में डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्या मतलब है इस बात का। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मनी इनकम, सो मनी इनकम इज सेम एज योर नॉमिनल इनकम। मनी इनकम आपकी जो है नॉमिनल इनकम को ही मनी इनकम कहा गया है, कोई अलग चीज नहीं है यहाँ पे मनी इनकम। एंड रियल इनकम, यू ऑल नो दैट व्हाट इज द रियल इनकम, द रियल इनकम इज द इनकम इन द इकोनॉमी दैट इज एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ योर इन्फ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता। एंड योर नॉमिनल इनकम और यू कैन कॉल इट एज मनी इनकम की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है दैट हैज बीन एनकाउंटर्ड इन इट, वो इसमें क्या होता है, अवेलेबल होता है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ, ठीक है। जो मनी इनकम है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ योर इन्फ्लेशन एंड रियल इनकम इज एक्सक्लूसिव ऑफ योर, यू कैन से रियल सॉरी इन्फ्लेशन, ठीक है। सो दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। नाउ इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेके बात करती हूँ आपके साथ। सपोज हम बात कर रहे हैं कि आप कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम देयर इज, लेट्स से, वैसे तो कंपनीज में बहुत हाई पे स्केल होता है बट लेट्स से कि 20,000 आपको पे स्केल मिल रहा है, ठीक है। सो दैट 20,000 जो आपको मिल रहा है वो क्या है, वो आपकी इनकम है, दैट इज द सिंपल नॉर्मल इनकम, वो आपकी नॉर्मल इनकम है। अब क्या होता है, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइसेस इन द इकोनॉमी ऑफ द कमोडिटीज, ठीक है, आपकी इकोनॉमी में कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और या यू कैन से ऑल द नेसेसरी गुड्स जो है उनके प्राइसेस जो है डे बाय डे क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, तो उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब उनके प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि आपकी इनकम जो थी वो थी 20,000, तो आपकी इनकम जो है वो बढ़ा के कर दी जाती है 30,000, ठीक है। तो अगर आप इसको रियल टर्म्स में देखेंगे, सो योर रियल इनकम हैज बीन इंक्रीज्ड, आपकी रियल इनकम जो है, मतलब अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनकम देखें तो दैट हैज बीन इंक्रीज्ड, उसको इंक्रीज किया गया है, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम योर 20,000 to 30,000। So if you will calculate the difference between your 30,000 and 20,000, that is equal to 10,000. So what is that 10,000? That 10,000 is your real income. वही आपकी real income है. Are you getting my point? So that is your real income. लेकिन अगर आप देखें कि आप पहले 20,000 में भी जितना सामान घर के बेसिक नीड के लिए बाय करके लाते थे एंड उसमें से आप कुछ भी सेव नहीं कर पाते थे, सो टुडे ऑल्सो जब आपकी इनकम 30,000 हो गई है, यू आर गेटिंग द सेम, you can say products, you are getting the same output, same bundle of goods you are purchasing and you are again left nothing to save, और अभी भी आपके पास कुछ भी सेव करने के लिए नहीं बच रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट टर्म्स में तो आपकी इनकम जो है वो बड़ी है, इन नंबर्स अगर आप बात करें तो आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है, बट अगर आप इन जनरल देखें तो आपकी इनकम जो है वो नहीं इंक्रीज है। क्यों? क्योंकि इसकी मनी वैल्यू जो है दैट हैजंट बीन इंक्रीज्ड, वो एनहांस नहीं हुई है, बल्कि मनी की जो वैल्यू है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से आपके पास हेल्दियर अमाउंट आने के बाद भी इवन दो यू आर सेविंग नथिंग, आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं एंड यू आर परचेजिंग द सेम बंडल ऑफ गुड्स एज यू आर परचेजिंग इनिशियली, तो आपके पास वही जो है गुड आप परचेज करें। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर मनी इनकम एंड रियल इनकम। तो अगर आपके पास इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है ही नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे बोला कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं है, प्राइस लेवल को फिक्स कर दिया गया है, सो इन दैट केस क्या होगा कि जो भी आपके रियल इनकम, अगर आपके रियल इनकम में 10,000 का इंक्रीज आया, 30,000 की है, तो दैट मीन्स आपकी जो मनी इनकम है उसमें भी 30,000 का इंक्रीज आएगा एंड उसमें आपका 10,000 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा कि जो एब्सोल्यूट इनकम में इंक्रीज आया है वही आपका मनी इनकम में भी इंक्रीज आया है और चेंज आया है, अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो नहीं एनकाउंटर किया जाए, मींस कि अगर प्राइस लेवल को फिक्स कर दिया जाए तो, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास आता है, व्हाट इज दैट इज द कैपिटल लेबर हैव अ फिक्स प्रोपोर्शन, कि कैपिटल एंड लेबर जो है इनका हमें क्या लेना है, वी नीड टू अंडरटेक अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एज वेल एज लेबर, ठीक है। हमें कैपिटल एंड लेबर का जो प्रोपोर्शन दैट वी आर अंडरटेकिंग फॉर अ मॉडल, दैट आल्सो वी नीड टू कैप्ट एज फिक्स्ड, उसको भी हमें क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है। देन कम्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड कैपिटल, कि हमें क्या करना है, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं रखनी है, देयर विल बी नो डिफरेंस, डिस्टिंक्शन मींस दैट देयर विल बी नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा हमारी वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल में। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम कोई भी जो न्यू कैपिटल है उसको हम क्या कर रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया है, इस मॉडल को हमने कैसे इसको अंडरस्टैंड किया है, दैट देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि हम करंट पीरियड की बात करें। तो अगर हम सिंगल करंट पीरियड की बात कर रहे हैं तो हमारे सारे के सारे फैक्टर्स एंड दे वुड बी नोन है, सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे रहेंगे, दे वुड बी वेरिएबल, वो वेरिएबल रहेंगे। तो इसीलिए अगर सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, कोई भी फिक्स्ड है ही नहीं, तो वेरिएबल और फिक्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं आएगी। So we can't differentiate between the, you can say, variable factor as well as capital as well as your fixed capital, उसके बीच में हम कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। Now come the most important assumption as well as the you can say this is the point, ठीक है। यही है जो हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन दैट वी हैव टू अचीव इन आवर मॉडल, यही हमें अपने मॉडल में निकालना है। दिस इज नोन एज कैपिटल कोफिशिएंट भी कहते हैं इसको, और यू कैन कॉल इट एज द कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर आपको हैरड का मॉडल याद हो तो वहां पे आपने आउटपुट कैपिटल रेशियो को पढ़ा था, व्हाट इज दैट आउटपुट कैपिटल रेशियो इज बीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, वो 1 अपॉन न्यू था क्योंकि वो बीटा के बराबर था। तो अगर यहाँ पे उल्टा है, उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा बन जाएगा एंड सिंपली न्यू बन जाएगा। सो हियर द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज व्हाट, इज न्यू। तो हमें यहाँ पे भी न्यू को हमें यहाँ पे भी यूज करना है इस मॉडल में भी आपने, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है आपके पास, जो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है दैट हैज बीन कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, उसको हमने क्या मान के चले हैं हम, कि उसको हमने कांस्टेंट माना है, ठीक है। Now moving on to the next part, that is according to Domer, अगर हम डॉमर के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो डॉमर ने क्या कहा कि एक इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम। अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो नेशनल इनकम के बराबर है, ठीक है, इफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम देन द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम। तो हमने अपने मॉडल को इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया है। नाउ अब डॉमर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, डॉमर ने ये कहा दैट इफ वी वांट टू मेंटेन दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर हम इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करना चाहते हैं और द रेट ऑफ एट विच इकोनॉमी एक्सपांड्स इट्स कंटिन्यूस, या उस रेट को सॉरी, या हम अगर उस रेट को एक्सपांड करना चाहते हैं जिस रेट पे हमारी जो इकोनॉमी है वो खुद को क्या कर रही है, एक कॉन्टिन्यूस स्टेट पे एक्सपांड कर रही है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी जो है खुद को एक्सपांड कर रही है एट अ कॉन्टिन्यूस स्टेट, मींस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर और फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हमें वो उसको देखना है, उसको चेक करना है, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट प्रोडक्टिव कैपेसिटी मस्ट बी इक्वल्स टू योर नेशनल इनकम। तो उसके लिए आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो नेशनल इनकम के बराबर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट कम्स द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज, अब प्रोडक्शन फंक्शन को क्या किया गया है, क्या कहा गया है, दैट प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल्स टू योर पीटी, ठीक है, मींस योर PT, what is your PT? PT is your productive capacity, जैसा आपने इक्वेशन 1 में देखा। What is this T but? एक T जो है ये सबस्क्रिप्ट जो है ये न्यू आया है यहाँ पे, what does it mean? इसका मतलब है that in time period T, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड T की हम बात करें जहाँ पे हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को अंडरटेक कर रहे हैं, which is equals to बीटा टाइम्स KT, और ये किसके बराबर है, this is equals to your बीटा टाइम्स KT के ये बराबर है, ठीक है। Now what is this बीटा टाइम्स KT? बीटा टाइम्स KT का मतलब हो गया what is बीटा, बीटा means your 1 upon u, beta is equals to what, 1 upon u, that means what is this, this is your output capital ratio, ये क्या है आपका output capital ratio। और जो आपने डॉमर सॉरी हैरड के मॉडल में पढ़ा था दैट वाज कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो था कैपिटल आउटपुट रेशियो जिसको हम न्यू से सिंपली डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड दिस इज आउटपुट कैपिटल रेशियो। ये क्या है आपके पास, ये आपका आउटपुट कैपिटल रेशियो है, ठीक है। Now what is PT? PT आपको बता दिया that this is a productive capacity in certain time period T, किसी time period T में है। And what is K? K is your capital stock, ठीक है, K आपका कैपिटल स्टॉक है एंड जो सबस्क्रिप्ट T है इट इज डिनोटिंग इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड T में हम इसको क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। सो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इन टाइम पीरियड T दैट इज इक्वल्स टू योर आउटपुट कैपिटल रेशियो, वो किसके बराबर है, आउटपुट कैपिटल रेशियो इनटू
यू कैन सी योर कैपिटल स्टॉक, जो भी आपके पास कैपिटल स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसके बराबर ये है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डॉमर व्हाट इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब जब डॉमर ने इसको एक्सप्लेन किया तो डॉमर ने क्या कहा कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज दिस प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो इसने ये कहा कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो ज्यादा कुछ नहीं है, बट ये वो चीज है विच इज द मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लेबर की फुल एम्प्लॉयमेंट करते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट करने के बाद मीन्स जो एग्जिस्टिंग लेबर हमारे पास है जो वॉलंटरली काम करना चाहती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पे हम जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट हम डिराइव कर सकते हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसको हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे आप किसी कंपनी के ओनर हैं एंड आपकी कंपनी में 100 वर्कर्स 100 लेबरर्स आर वर्किंग, ठीक है, एंड 100 लेबरर्स की जो वर्किंग कैपेसिटी है, ठीक है, दैट वर्किंग कैपेसिटी लीड्स टुवर्ड्स यू कैन से कि अगर 100 वर्कर्स हैं तो आपका पास जो एक की प्रोडक्टिव कैपेसिटी दैट इज द 10 यूटिल्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो उस 10 यूटिल्स ऑफ वर्क को, क्योंकि यूटिल्स में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वर्क इज डिस्कस्ड एज अ यूटिलिटी, ठीक है। तो हमने क्या कहा अगर 10 यूटिल्स उसकी वर्किंग कैपेसिटी है एक लेबर की, तो आपके पास जो 100 है उनकी हो जाएगी 1000। तो 1000 इज योर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, लेकिन हो सकता है कि हर लेबर हर वर्कर जो है अपना 100% ना दे रहा हो, कोई अपना 80% दे रहा हो, तो जो अपना 80% देगा तो उसके लिए आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या आ जाएगी 8 यूटिल्स की, ठीक है, जिस सबके लिए 10 आ रही है उसके लिए 8 की आ गई। तो अब अगर कोई 8 की दे रहा है, कोई 7 की दे रहा है, कोई 6 की दे रहा है, तो इन दैट केस आपकी जो टोटल प्रोडक्टिव जो आपके पास टोटल आउटपुट आएगा दैट वुड बी आइदर इन 96, ठीक है, वो 96 100 पे आ सकता है आपके पास। और यू कैन से मतलब इस तरह से आपकी वैल्यूज उसमें क्या आ सकते हैं 9 आपका 1000 जो है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है टोटल, उसको अचीव नहीं कर पाएगा, उससे नीचे वैल्यू होगी 900 समथिंग वैल्यू हो जाएगी, 800 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो आपका 1000 जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक्चुअल था वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो इसी चीज को डॉमर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो ये है कि अगर हर एक वर्किंग लेबर अपना 100% देता है और उसके 100% की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उन सब वैल्यूज को सम अप करेंगे तो जो टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज नोन एज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसी को हम क्या कहते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी कहते हैं। और इन्होंने ये कहा कि आप जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को मार्केट से एक्सप्लिसिटली मींस अपनी मर्जी से मार्केट फोर्सेस मार्केट एक्सप्लिसिटली का मतलब है यहाँ पे दैट जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस हैं उनसे आप इसको नहीं एनकाउंटर कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। फॉर एनकाउंटरिंग व्हाट इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी यू नीड टू लुक एट द फुल एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन, उसके लिए आपको फुल एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन को कंसीडर करना है, ना कि जो आपकी मार्केट फोर्सेस हैं जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके ऊपर आपको जाना है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा ही ऑल्सो एज्यूम्स दैट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसको फुली यूटिलाइज जो है वो किया जाए, ठीक है। उसको फुली यूटिलाइज करने का मतलब है कि जितने लेबर आपने एम्प्लॉय किए हैं वो हर लेबर जो है अपना 100% जो है वो देना चाहिए। सो दिस इज बाय डेफिनेशन उसने क्या कहा कि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर की डेफिनेशन देखते हैं तो उस डेफिनेशन में यही कहा गया है कि हर एक लेबर को अपना 100% जो है दैट ही और शी हैज टू पे, वो उनको देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। So now moving on to the equilibrium condition which can be written as Pt is equals to Yt, ठीक है। अब equilibrium condition क्या आती है हमारे पास, P is equals to Yt इक्वेशन 1, तो वहीं पे हमने T लगा दिया, so that this becomes Pt equals to Yt. So this Pt equals to Yt means what is Pt? Pt is your aggregate supply of output. अब Pt जैसे उसका T यूज हुआ तो वो in spite of productive capacity it has become aggregate supply of output, कि जितना हम आउटपुट को सप्लाई करें तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी वही है, जितना आपके पास सॉरी जितना आपके पास आउटपुट है आप उतना ही क्या करेंगे सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। सो योर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट एंड योर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है वो एग्रीगेट डिमांड फॉर आउटपुट को क्या करती है सिंबलाइज करती है, वो कैसे, क्योंकि जितनी मनी आपके पास है, नेशनल इनकम का मतलब वो पूरी इकोनॉमी में हर एक इंडिविजुअल की इनकम जो है, तो जितनी हर एक इंडिविजुअल की इनकम है उसी इनकम के अकॉर्डिंगली ही वो क्या करेंगे अपनी डिमांड करेंगे। तो इसीलिए जो YT है दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड ऑफ द आउटपुट, वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर है, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है दैट इज इक्वल टू योर एग्रीगेट डिमांड, वही आपके एग्रीगेट डिमांड के बराबर है, क्योंकि इकोनॉमी में कोई भी बंदा यहाँ पे सेव कुछ नहीं कर रहा है, जो भी इनकम उनको मिल रही है उसको वो क्या कर रहे हैं उसी की वो डिमांड जो है वो वहां पे लेके जा रहे हैं। नाउ अब कहते हैं ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 आपको ये देख सकते हैं दैट पीटी जो है वो पी के बराबर है एंड वाईटी जो है वाई के बराबर है।
क्लियर? सो दैट मीन्स योर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, एंड व्हाट इज योर एग्रीगेट डिमांड ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू योर नेशनल इनकम, तो वो नेशनल इनकम के बराबर आ रही है, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 2 को यूज करें तो इक्वेशन 2 में हमने देखा था दैट पीटी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स केटी के बराबर था। नाउ इफ वी विल इंट्रोड्यूस अ चेंज, अगर हम इसमें एक चेंज का वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दें, अब बीटा तो क्योंकि कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन जो वेरिएबल फंक्शंस है दैट इज पीटी एंड केटी, जो वेरिएबल्स हैं, जो मेरे मॉडल के जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं, उनमें तो चेंज आएगी, है ना। तो जब उनमें अगर हमने चेंज इंट्रोड्यूस की है तो ये डेल्टा जो है इट इज डिनोटिंग द चेंज, तो उसमें क्या आ रही है, चेंज आ रही है, लेकिन बीटा वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रही है बिकॉज बीटा वैल्यू इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 4, और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज जो इक्वेशन 4 आपके सामने बन के आई है, दिस इक्वेशन इज नोन एज अ सप्लाई साइड कंडीशन ऑफ द आउटपुट। इसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई साइड कंडीशन ऑफ आउटपुट, जहां पे आपका डेल्टा पीटी जो है दैट विल रिप्रेजेंट योर चेंज इन कैपेसिटी। वो क्या बता रहा है कि आपकी जो कैपेसिटी है, पर कौन सी कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसमें कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वजह से उसमें कितना चेंज आ रहा है, और यू कैन से कैपेसिटी क्रिएटिंग इफेक्ट क्या रहा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। क्या बोला है कि कैपेसिटी क्रिएटिंग इन्वेस्ट क्या रहा, इफेक्ट क्या रहा है इन्वेस्टमेंट का, या तो आप बोल सकते हैं इसको that what is the change that has been encountered by investment in capacity, ठीक है। another is the capacity creating effect of investment, तो दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगा, PT, change in PT, that means change in your productive capacity, ठीक है। एंड जो चेंज आ रही है किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू योर इन्वेस्टमेंट। चेंज इन कैपिटल स्टॉक, ठीक है, कैपिटल स्टॉक, डेल्टा केटी मींस चेंज इन कैपिटल स्टॉक, तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक का क्या मतलब होता है, इट सिंपली मींस कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इसका सिंपली क्या मतलब होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज हैपनिंग, इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे पास जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी उसमें कितना चेंज आ रहा है, दैट वी आर टेकिंग ओवर दिस, वो हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर द डिमांड साइड। एक्चुअली डॉमर का जो मॉडल है दोनों साइड्स को कवर करता है, दो साइड्स को कंसीडर करता है, वन इज द सप्लाई साइड, अनदर इज द डिमांड साइड। तो सप्लाई साइड वी आर डन विद एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द डिमांड साइड। तो डिमांड साइड की जब हम बात करते हैं, सो बाय द डेफिनेशन वी नो कि इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज इक्वल टू सेविंग्स, वो सेविंग्स के बराबर है। और यहाँ पे डॉमर ने क्या किया है, मल्टीप्लायर थ्योरी का यूज किया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन डिमांड साइड। डिमांड साइड को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीप्लायर की थ्योरी का यूज किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है IT इज इक्वल टू HT, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। नाउ यू नो कि आपके पास जो सेविंग्स है व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू S टाइम्स YT। व्हाट इज दिस S टाइम्स YT, ये आपको मैंने हैरेट के मॉडल में भी समझाया हुआ है, एंड पीछे एक मॉडल और है जिसमें हमने इस चीज को डिस्कस किया है। So here this small s is representing your propensity to save। ये क्या है, जो small s है ये आपका propensity to save को डिनोट कर रहा है, and YT is your total income, कि टोटल इनकम का कौन सा पोर्शन है दैट यू आर सेविंग, जिसको आप सेव कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपके पास सेविंग्स के बराबर आ जाता है। बिकॉज यू ऑल नो कि जो हमारी टोटल इनकम होती है उसको हम टू पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वन इज द सेविंग्स, अनदर इज द कंजम्पशन। तो हाफ पार्ट तो हम कंजम्पशन में ले जाते हैं एंड कुछ पार्ट जो है हम सेविंग्स के लिए रख देते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज दैट सेविंग्स प्रोपेंसिटी ऑफ आउट ऑफ योर टोटल इनकम, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज YT को अकेला कर देंगे एंड S को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। सो दिस बिकम्स 1/S, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/S इंटू IT बन जाएगा। सो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी चेंज को इंट्रोड्यूस करेंगे। चेंज को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग डेल्टा ओवर हियर। तो जब हमने डेल्टा इंट्रोड्यूस किया तो जो फैक्टर्स थे हमारे पास लाइक इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, इनमें चेंज आ गई, लेकिन सेविंग्स प्रोपेंसिटी में चेंज नहीं आई, क्योंकि हमने इसको अजम्पशंस में देखा है दैट हमने इसको क्या माना है, हमने इसको कांस्टेंट माना है। अपनी सेविंग्स को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, सेम एज बीटा वैल्यू। जैसे हमने बीटा को कांस्टेंट माना है वैसे हमने सेविंग्स को भी कांस्टेंट माना हुआ है। तो अगर हमारी सेविंग्स कांस्टेंट है तो दैट मींस सेविंग्स में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो चेंज किस में आ रही है आपकी, यहाँ पे YT में और उसकी वजह और IT में। तो YT जो है दैट हैज बीन कंसीडर्ड एज योर, YT क्या है, YT इज एट योर कौन से साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, और IT आपके राइट हैंड साइड पे। दैट मीन्स YT जो है दैट इज विच फैक्टर, वो कौन सा फैक्टर, वो डिपेंडेंट फैक्टर है, और IT जो है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो अगर IT में चेंज आती है तो उसकी वजह से आपका YT जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको डिमांड साइड भी मिल गई, और ये डिमांड साइड क्या, किसने, किसके मॉडल से आपको किसकी हेल्प से मिली है, दैट इज केन्जियन मल्टीप्लायर रिलेशन की हेल्प से मिली है। मल्टीप्लायर रिलेशन क्यों है, क्योंकि 1/S जो है दैट इज 1 अपॉन प्रोपेंसिटी टू सेव जो है
दैट वी आर यूजिंग। और अगर आपको याद हो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 1/MPS ही होता है, मींस 1/मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे 1/MPS जो है दैट हैज बीन मल्टीप्लाइंग विद योर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया, एक आपने दो चीजें निकाली थी, वन इज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अनदर वन इज द एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है। तो डिमांड क्रिएटिंग हो गया है आपका। अब यहाँ पे आपकी यहाँ पे डिमांड जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है, दिस इज द डिमांड क्रिएशन। और डिमांड क्रिएशन किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। क्योंकि डिमांड क्रिएशन कैसे हो रही है, क्योंकि वाईटी चेंज हो रहा है, वाईटी इज योर नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट डिमांड फॉर आउटपुट, उसको हम एग्रीगेट डिमांड फॉर आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं, तो अब आपको डॉमर ने क्या बता दिया, डॉमर ने आपको दोनों चीजें क्लियर कर दी। व्हाट आर द टू थिंग्स, सप्लाई साइड भी एक्सप्लेन कर दी, दैट इज सप्लाई साइड में आपने क्या देखा कि आपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैसे एनहांस किया एंड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से इन्वेस्टमेंट इफेक्ट क्या रहा आपका कैपेसिटी क्रिएशन में। उसके बाद सेकंड आपने जो डिमांड साइड में डिस्कस किया, व्हाट वाज दैट, डिमांड साइड में आपने डिस्कस किया है कि किस तरह से आपने मल्टीप्लायर थ्योरी की, केन्स की मल्टीप्लायर थ्योरी को यूज करके आपने जो है अपना डिमांड को एक्सेस, जो डिमांड है, डिमांड क्रिएशन है, वो आपने एग्जिस्ट करवाया है। और डिमांड जो आपने एग्जिस्ट करवाया दैट वाज आल्सो ड्यू टू द चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट, वो भी किसकी वजह से है, इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से। नाउ यहाँ पे अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल की, डिमांड साइड और सप्लाई साइड जब आपके पास क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद डॉमर ने बात की है हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन की, एंड उसने दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस बताई हैं, वन इज द स्टॉक कंडीशन, अनदर वन इज द फ्लो कंडीशन। तो स्टॉक कंडीशन वो कंडीशन होती है वेयर इन जहाँ पे आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी और नेशनल इनकम जो दैट इज एट जीरो टाइम पीरियड की बात हो रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इट हैज बीन कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखा गया है। तो हमें इस कंडीशन को डील नहीं करना है, हमें किस कंडीशन को लेना है, हमें अपनी फ्लो कंडीशन को लेना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो मॉडल है दैट इज अ मॉडल ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ का मॉडल है। तो इसलिए हम किसको कंसीडर करेंगे, फ्लो कंडीशन को कंसीडर करेंगे, दैट इज डेल्टा पीटी इज इक्वल टू डेल्टा वाईटी को हमने क्या करना है, कंसीडर करना है। नाउ फ्रॉम द सेकेंड फ्लो कंडीशन, अगर हम सेकेंड फ्लो कंडीशन को यूज करते हैं, सो व्हाट वी हैव, डेल्टा पीटी की जगह पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है बीटा टाइम्स डेल्टा केटी। क्यों, क्योंकि हमने ये चीज इक्वेशन फोर्थ में निकाली है, ठीक है। ये इक्वेशन फोर्थ है, डेल्टा पीटी जो है यहाँ देख सकते हैं आप किसके बराबर है, बीटा टाइम्स डेल्टा केटी के बराबर है, एंड डेल्टा वाई टी जो है दैट इज इक्वल टू 1/s टाइम्स डेल्टा आई टी के बराबर। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो डेल्टा पी टी की जगह पे आएगा बीटा डेल्टा के टी, और यहाँ पे आपके पास डेल्टा वाई टी की जगह पे आपके पास आएगा 1/s टाइम्स डेल्टा आई टी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। बट एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, अगर हम इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन की बात करें, तो हमें पता है दैट यू चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपके कैपिटल स्टॉक में चेंज आ रही है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन बी को पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन बी है इसको पुट कीजिए इक्वेशन ए में। जब आप इक्वेशन बी को इक्वेशन ए में पुट करेंगे, इन स्पाइट ऑफ डेल्टा के टी यू विल राइट आई, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी बीटा टाइम्स आई टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/s टाइम्स डेल्टा टाइम्स आई टी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में व्हाट यू हैव टू डू हियर इज डेल्टा आई टी अपॉन आई टी इज इक्वल्स टू एस बीटा। आपने क्या किया, ये जो डेल्टा आई टी था इसको यहीं रहने दिया, और ये जो सिंगल आई टी था इसको इसके नीचे ले गए, एंड यहाँ से बीटा जो था, बीटा को इसकी जगह पर रहने दिया, एंड 1/s था, इस 1/s को आपने इसको क्या कर दिया, बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। सो देन व्हाट यू आर लेफ्ट विद, अब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज डेल्टा आई टी अपॉन आई टी इज इक्वल्स टू एस बीटा। वो किसके बराबर है कि डेल्टा आई टी अपॉन आई टी जो है वो एस बीटा के बराबर है, ठीक है। इट मीन्स दैट डेल्टा आई टी अपॉन आई टी जो है व्हाट इज दैट, दैट इज एक्चुअली योर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, ये आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, और ये वैल्यू कब मिली है, जब आपकी कैपेसिटी जो है वो भी फुल्ली यूटिलाइज्ड हुई है, ठीक है। ठीक है, आपकी जो कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोडक्टिव कैपेसिटी की। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है दैट हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड, और जो आपके पास लेबर फोर्स थी दैट इज आल्सो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वो भी क्या थी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे थी। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, जस्ट विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में अगर इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से हमारा जो कांस्टेंट है एस बीटा दैट विल आल्सो इंक्रीज, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये है डेल्टा आई टी अपॉन आई,
विच मीन्स कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रही है, सो वो चेंज किसकी वजह से आ रही है, एट अ कांस्टेंट रेट एस बीटा, वो एस बीटा की तरफ से है, क्योंकि जो भी आपके लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो आपके राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो मीन्स एस बीटा ही वो रेट है जिस रेट पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वो हो रही है इंक्रीज, ठीक है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज इक्वल्स टू एस बीटा, वो क्या है, दैट इज योर एस बीटा। सो दिस इज व्हाट डॉमर वांट्स टू कंक्लूड, यही चीज है जो डॉमर हमें बताना चाहते थे। अगर आप हैरेट का मॉडल आपको याद हो, उसमें भी हमारे पास एस अपॉन बीटा करके वैल्यू आई है, ठीक है। दोनों का जो सोल्यूशन है वो सेम ही है। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव, यही हम प्रूव करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद इसकी एक क्रॉलरी भी है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है दैट हैज बीन इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो जो आपकी इनकम है दैट विल आल्सो इंक्रीज विद द सेम रेट। तो आपकी जो इनकम है वो भी उसी सेम रेट से इंक्रीज करेगी। ये क्रॉलरी है डॉमर की, ठीक है। आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, आपको इसको प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, डेल्टा वाई टी अपॉन वाई टी इज इक्वल्स टू एस बीटा, कि वो किसके बराबर है, एस बीटा के बराबर। मीन्स द चेंज इन इनकम जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एस बीटा, वो भी किसके बराबर है, एस बीटा के बराबर है। सो देयरफॉर व्हाट इट इम्प्लाइज, ये क्या आपको बता रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है, ठीक है, आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू योर रेट, वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपके रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। एंड दोनों का ये रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एस बीटा के, ठीक है। दोनों जो है किस कांस्टेंट वैल्यू से ग्रो कर रहे हैं, दैट वैल्यू इज एस बीटा। एंड यही जो है विच इज नोन एज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ, which has been determined by the economist for the explanation of the model, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी किसी भी पार्ट पे कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आपके माइंड में आ रहा है, चाहे वो लास्ट लेक्चर्स के लिए है या इस लेक्चर में किसी पॉइंट पे कोई डाउट है, तो प्लीज डू कमेंट मी सो दैट आई टेक अप योर क्वेरीज एंड आई एबल टू सॉल्व देम। ओके, सो टिल देन stay tuned, bye bye, take care and study hard.